हरि हरि। Start. Kartal should be played very softly. Mridang soft. We'll go slowly and then we'll make fast. Huh? जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासदि श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. These tunes are particularly in the mood of calling to Krishna, as if Krishna is coming back and all the Brajvasis are calling to him. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Everybody please. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि इसको बंद कर दीजिए, बहुत आवाज कर रहे हैं।
सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। Happy to see all the enthusiastic devotees, ever enthusiastic, more enthusiastic than me. फंस गया मैं। Trying to preach to people who are too enthusiastic is bad. क्योंकि उफ उफ नहीं हो 10 मिनट के लिए वीडियो मेरा ऑफ हो जाता है। अरे आपका पूरी वीडियो ऑफ है, क्या बात है? क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई ठीक है, ओके ओके, विल नॉट डिस्क्राइब। सो वी आर हैप्पी, विल मीट कृष्ण नाउ। हमारे भागवतम के प्रसंग में एकदम कृष्ण कथा सुन रहे थे और अब हम लोग कृष्ण से मिलेंगे। कृष्ण अब आ रहे हैं, इन द सेंस की ड्रामा शुरू होने वाला है, कृष्ण कथा शुरू होने वाली है, तो हम उसको शुरू करते हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं। तो इतना बड़ा परिवार नहीं मिलता ना किसी का। इतने सारे भाई, छोटे भाई, देखो कितने सारे छोटे भाई हैं, और सब बात भी मानते हैं, सब भक्ति भी करते हैं। भाई पिता माता, सब बहुत सारे माता जी लोग मिल गए, सब बहुत सारे लोग मिल गए। नॉट कीर्तन कथा करने के लिए घर में कितने होते? 3-4 होते मैक्सिमम, है कि नहीं? काफी अच्छा परिवार है। प्रभुपाद जी बोले कि मैं घर को छोड़ा तो मेरे कितने सारे बच्चियां हो गई, कितने सारे लड़के हो गए, इत्यादि इत्यादि। और सुनते हैं कम से कम कृष्ण की भक्ति करते हैं। It's very rare to have association with devotees where we can talk about Krishna, is it not? अब भगवान की कृपा से हमें रोज ही प्राप्त है। ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांग, क्या कह रहा है प्रभु जी? यू आर कैप्टन ऑफ दिस टाइटैनिक। अरे टाइटैनिक तो डूब गया था। टाइटैनिक तो पहले ही रात यात्रा में डूब गया था। ये आपने उपमा अच्छी नहीं दी। कोई ऐसी नाव बोलते जो पार हो गई, आप तो टाइटैनिक का नाम रख दी जो पहली बार में डूब गया। हे भगवान, नौका चालक भी डूबेगा और नौका में बैठने वाले भी सब डूब जाएंगे। अरे अरे, भैया तारीफ करने से पहले कुछ सोच लिया करें। तारीफ कर रहे हैं कि बेइज्जती कर रहे हैं? ठीक है। ठीक है, आपके भाव को हमने स्वीकार कर लिया। हम तो नौका वाले नहीं, हम तो क्या है, वो शिप के वो जो पोछा लगाने वाले वो है। नौका चालक तो शिला प्रभुपाद जी है। हम तो खाली पोछा लगाने वाले हैं, तो इसलिए। हाँ, जलदूत, हाँ जलदूत का तो बोलते ठीक है, जलदूत के पोछा लगाने वाला। जलदूत का कीड़ा था मैं। तो प्रभुपाद जी केबिन में बैठे थे, उस कीड़ा जरूर रहाऊंगा पिछले जन्म में कीड़ा। प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बहुत छोटा सा बात, इस प्रेयर्स पे ध्यान दीजिए। एकदम से मन में आ रहा है कि अगर किसी ज्ञान की शलाका से या अग्नि से, बोलते क्या शलाका, मतलब अग्नि से ज्ञान, मतलब किसी को आप दूसरा एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, ज्ञान देता है, तो खुद उसकी रोशनी कम नहीं हो जाती। प्रचार करने से आपकी तपस्या कम नहीं हो जाती। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंस्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वस्य नाथ रूपौसौ भक्तिवर्त्मा प्रदर्शनात् भक्तचक्रवर्तित्वा चक्रवर्ती आख्या भवत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम्
संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालिनानातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात् त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप कल का श्लोक भी दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, एक बार उसको दिखा करके फिर हम आज का श्लोक शुरू करते हैं, उसे लिंक याद रहेगा। कल का श्लोक था क्या? हाँ जी, यहां से था ना, उस श्लोक को देख के समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 12वें श्लोक में सुना था कि सूत गोस्वामी कह रहे हैं अब मैं परीक्षित महाराज जो राजर्षि थे उनके जन्म कर्म और शरीर छोड़ने की कथा को कहूंगा। संस्थाम च पांडुपुत्राम, किस प्रकार से पांडु के पुत्र युधिष्ठिर महाराज आदि ने महाप्रयाण किया था, ग्रह त्याग करके शरीर त्यागने के लिए चले गए थे, और इनसे कृष्ण कथा का उदय होता है, ये कहूंगा। ठीक है, अब वो कहना शुरू कर रहे हैं, बहुत सिंपल लिंक है, कथा आपकी शुरू हो रही है। यदा यदा समझ जब से, तो जब से मतलब अब कथा शुरू हो गई, तो उसको आप बोलिए, बाकी सारी माइक ऑफ कर दीजिएगा, somehow just giving feedback, only one mic should remain on, okay। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 13वां से 17वां श्लोक करने का प्रयास करेंगे। 4 श्लोक आज कठिन बिल्कुल नहीं है, कथा की शैली होगी, कथा के रूप में है, उसे सुनिए। यदा मृधे कौरव सृञ्जयाना, यदा मृधे कौरव सृञ्जयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु, वीरेष्वतो वीरगतिं गदाभिमर्श मृकोदरा विद्गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रोणरीति स्म पश्यन्। कहाँ है मन आपका मेरे डियर डिवोटी? I have not taken prasadam sufficiently. Yes. Bhartuhu priyam draudati, भर्तुः प्रियं द्रोणरीति स्म पश्यन्, भर्तु प्रियं द्रोणरीति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि, कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रयमेव तस्य, उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति, जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। तो उसको हम अभी बहुत बार क्यों ना गूंज रही है आवाज, बाकी माइक ऑफ है, ठीक।
इसको उधर घुमा दीजिए, इतना मत करिए सर, तभी वहां जाते। यदा मतलब जब, और मृधे मतलब जो युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, तो कह रहे हैं जब उस युद्ध में कौरव संजयानाम, कौरव और संजयों के, संजय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो धृष्टद्युम्न थे वह संजय वंश के थे, और वह कौरवों की सेना का सेनापति थे, के सेनापति थे। इसलिए पांडवों की सेना को संजया नाम का, संजयों की सेना कहा जा रहा है। समझ रहे हैं? तो कौरव और संजयों के वीरेशु अथ वीर गतेम गतेशु, जितने भी वीर थे जिनको वीर गति प्राप्त हुई। वीर गति के दो अर्थ हैं, स्वर्ग प्राप्त हुआ या भगवत धाम प्राप्त हुआ। इसको भीष्म उक्ति में आप आगे सुनने वाले हो, हत गत स्वरूपम, जो भी व्यक्ति वहां मरे, भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और वह भगवान की मुक्त हो गए। तो दो अर्थ यहाँ पे आचार्य ने रखे हैं। वीर गति को प्राप्त होने के बाद मतलब जो वीर लड़ रहे थे दोनों पक्षों में से, कौरवों की तरफ से और संजयों की तरफ से, यानी पांडवों की तरफ से, उनको वीर गति प्राप्त होने के बाद, वीर गति अर्थ समझ रहे, या तो स्वर्ग प्राप्ति अर्थ ले सकते हैं या फिर वैकुंठ की प्राप्ति। वृकोदर, वृकोदर किसको कहते हैं? भीम को। और भीम को वृकोदर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका अच्छा, वो गलती पकड़ में आ गई, उनका बड़ा पेट नहीं था, पेट की शंख भी बड़ा नहीं था। भी आप में समझ रहे हैं, भीम कर्म वृकोदर, भगवत गीता में सुने कि नहीं सुने? भीम कर्म का अर्थ, भीम का अर्थ है, भीम कर्म का अर्थ है बड़े बड़े कार्य कर रहा है, लेकिन वृकोदर का अर्थ है जिसकी उदर में वृक नामक जठराग्नि थी, जो बहुत भूखे थे, उनकी जठराग्नि बहुत स्ट्रांग थी, तो इसलिए वृकोदर भीम को कहते थे। बोलो जब भी समझ गए उसका वो व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन अभी करने। वृकोदरा आविध, आविध का अर्थ है फेंकी गई। गदाभिमर्श, अभिमर्श का मतलब है आघात, चोट से, समझ रहे हैं? भग्न उरुदंडे, उरुदंड मतलब हो गया जो रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, मेरुदंड, मेरुदंड तो यही बोलते हैं ना। भग्न, भग्न मेरुदंड, भग्न उरुदंड मतलब भग्न मेरुदंड, धृतराष्ट्र पुत्र अर्थात दुर्योधन। तो दूसरी लाइन का अर्थ क्या हुआ? वृकोदर अर्थात भीम के द्वारा फेंकी गई गदा से आघात पहुंचने के कारण जिस का मेरुदंड टूट गया था वह दुर्योधन। बाकी सब लोग वीरगति प्राप्त हो गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, और आप जानती हो कि बाद में दुर्योधन छुप गया था तालाब में। इतनी महाभारत तो सबने देखी है। उसको चैलेंज करते हैं, वो बाहर आता है, फिर उसको मारते हैं, भीम, युद्ध होता है, फिर भगवान कहते हैं उसको जंगा में मारो, जो भी रहा, जंगा मारो या रीढ़ की हड्डी पे मारो। यहाँ पे लिखा है रीढ़ की हड्डी, तो हम रीढ़ हड्डी मान रहे हैं, जो भी हो। वो गदा के आघात से, भीम की गदा के आघात से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वह लेटा हुआ था, जान रहे हैं। कौन? धृतराष्ट्र पुत्र, मतलब धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा धृतराष्ट्र पुत्र मतलब 100 पुत्र, क्योंकि 100 पुत्र नहीं बचे थे, अकेला बचा था। तो उस दुर्योधन को का प्रिय करने के लिए भर्तु प्रियम, किसके भर्तु? अश्वत्थामा का भर्ता, अश्वत्थामा के स्वामी थे ना दुर्योधन। उनका प्रिय करने के लिए, प्रिय होगा ऐसा देखते हुए, द्रोणीर इति स्म पश्यन्, यह देखते हुए कि इससे मेरे स्वामी का प्रिय होगा। कृष्णा सुतानाम, यहाँ कृष्ण नहीं है, कृष्णा है। उस कृष्णा? द्रौपदी, द्रौपदी के पुत्रों का स्वपताम शिरांसी, उनके शिरों को काट दिया। अभी तो हम खाली आपको संस्कृत समझा रहे हैं, थोड़ी कथा भी सुनाएंगे, लेकिन पहले संस्कृत समझ लीजिए। यह सोच करके कि दुर्योधन का प्रिय होगा, अपने भर्तु, अपने अपने स्वामी का प्रिय देखते हुए, मतलब देख रहा था कि इससे प्रिय होगा। कभी कभी आप लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं, हम देख रहे हैं कि इससे आपका प्रिय होगा, है कि नहीं? हम देख रहे हैं कि आपसे गलत होगा, देखने का समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं। तो ये हम वो सोचते हुए कि इससे उसके स्वामी का प्रिय होगा, उसने द्रौपदी के बच्चों को, 5 जो उसके बच्चे थे, बच्चे मतलब छोटे बच्चे नहीं थे, युद्ध में भी भाग लिए थे, लेकिन मान लीजिए 16-17 साल के रहे होंगे,
उनके स्वपताम को मार दिया, उनकी गर्दन काट दी बेसिकली। उनके स्वपताम शिरांसी मतलब उनके शिरों को काट दिया। फिर उपहरद, उपहार समझते हैं आप, गिफ्ट देना, तो उन सिरों को उपहार दिया। उपहरद विप्रमेव तस्य, तस्य मतलब उस दुर्योधन का, विप्रिय एव, प्रिय नहीं ही हुआ। विप्रिय, विपरीत, विप्रिय, वो सोच रहा था कि मेरे स्वामी का, द्रोणी का मतलब द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा सोच रहा था कि मेरे स्वामी का प्रिय होगा, ऐसा वो सोच रहा था, लेकिन उसका विप्रिय ही हुआ। किसका विप्रिय हुआ? दुर्योधन का। क्यों? जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति, जुगुप्सितम मतलब इतने नृशंस, इतने क्रूर कार्य का तो सभी निंदा करते हैं। ये हम आपको खाली शब्दों से परिचय कराया, अभी अनुवाद और उसका अन्वय देखते हैं। अब तो मैं समझ रहा हूं कठिन नहीं हो रहा होगा। एक ओवरव्यू देख लीजिए इन दो श्लोकों का। जब युद्ध समाप्त हो गया, धृतराष्ट्र की रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो उनके अपने स्वामी के प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया और उनके सिरों को दुर्योधन को समर्पित किया, यह सोचते हुए कि उनका प्रिय होगा, लेकिन उसका प्रिय नहीं ही हुआ, क्योंकि इस कृत्य की सभी निंदा करते हैं। ठीक है, अब तो फिलॉसफी कम है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य की पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए से अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। अब जरा थोड़ी सी हम कथा सुना देते हैं, हल्की सी कथा सुनाएंगे। देखिए, आप जानते हो कि कौरवों के पक्ष में बहुत सारे सेनापति परिवर्तित हुए थे। सबसे पहले कौन थे? भीष्म देव थे, उसके बाद द्रोणाचार्य, उसके बाद कर्ण, उसके बाद उसके उसके बाद कृतवर्मा, नहीं कृतवर्मा कभी नहीं था, शल्य, जहां तक मुझे स्मरण। ऐसे करके बहुत लोग परिवर्तित हुए। फिर अंततो गत्वा जब ये धृतराष्ट्र दुर्योधन इस प्रकार से ये लोग हार गए हैं, तो दुर्योधन फिर तालाब में जाकर जल को स्तंभित करके वहीं पे अपनी तपस्या कह सकते हैं, थकान दूर कर रहा था। कैसे भी कर रहा हो, जो भी कर रहा था, तो वो बाहर नहीं आ रहा था। तो फिर युधिष्ठिर महाराज और अन्यों को भगवान ने कहा कि जाओ उसको गाली दो। तो ऊपर से चिल्लाना चालू किए उसको, क्योंकि उसको पकड़ा, उसको एक्चुअली देखा था एक भील ने, एक शिकारी ने देखा था कि वो तालाब में जाकर छुप गया, सब जगह ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा था। तो उस तालाब के बाहर जाकर के फिर वो लोग उसको मतलब आवाज लगाते हैं, क्या तुम कायर की तरह छुप रहे हो, इत्यादि इत्यादि। अरे दुर्योधन से मिले कैसे, जो तालाब में है? तो अभी कैसे मिल लेगा? अभी कैसे मिल लेगा? अभी तो तालाब में छुपा हुआ है वो। तो उसके बाद जो तालाब से उनको गाली देकर के बाहर बुलाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि मैं किसी एक व्यक्ति से युद्ध करूंगा। तो कहते हैं तुम किसी को भी सेलेक्ट कर लो। तो कह रहे हैं, फिर वो भीम को सेलेक्ट करते हैं, युद्ध करते हैं। फिर आप जानते हो कि वो हार नहीं रहे थे, क्योंकि उनका शरीर जो है वज्र का बन गया था, गांधारी के आशीर्वाद से। तो वो भी इसमें भी कथा है, लेकिन उस कथा को हम यहाँ नहीं बताना चाहते। ठीक है। तो खैर जो भी है, उस कथा को आप जानते हैं। और फिर जब युद्ध हो रहा था तो भीम भी जो है हार, दोनों में से कोई हार नहीं रहा था। लेकिन दुर्योधन जो है, एक तो उनका शरीर वज्र का हो गया था तो चोट नहीं लग रही थी, और वो दक्ष अधिक थे, गदा कौशल में अधिक दक्ष थे। तो भीम को लग रहा था वो हार जाएंगे या एटलीस्ट हरा नहीं पाएंगे। तो भगवान कृष्ण फिर जंघा पे हाथ रखकर बोलते, गंधा गजा उनकी जंघा पे आप वार कीजिए। तो फिर मारते हैं। अब जानते फिर बलराम जी गुस्सा हो जाते हैं, फिर उसको मारने के लिए उद्यत होते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे भाई वह तो अपनी वचन का ही पालन कर रहा था, क्योंकि उसने ही द्रौपदी को जब अपमान हो रहा था तो अपनी जंघा खोल के दिखाया था कि तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठने के लायक हो। तब भीम बोले थे कि इसी जंघा को मैं तोड़ूंगा। तो ये तो उसने प्रवत का पालन किया है, क्या दिक्कत है? तो बलराम जी गुस्सा होकर चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा करके
खैर ये सब है। और उसके अलावा बहुत मैत्रेय मुनि ने भी शाप दिया था कि कुमारी जंघा को, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, भीष्म भीम तोड़ेंगे इस प्रकार से। तो खैर जो भी है, तो उस प्रकार से वह गिरा पड़ा था, और अपने स्वामी की बड़ी हालत खराब देख करके, या बड़ी विपरीत स्थिति देख करके, क्या कहते हैं, दुर्दशा देख करके अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आ रहा था। तो फिर उसने क्या क्या करें, अश्वत्थामा बचा था, कृतवर्मा बचे थे, और कृपाचार्य बचे थे। तो उन्होंने देखा कि एक रात्रि का समय था, और ये कौवों का एक समूह था, और उसमें कुछ उल्लू घुस करके सारे कौवों को मार देते हैं। वैसे तो आप लोग को याद ही होगा, मारा कुछ समय पहले कथा सुना थी, फिर भी हम रिवीजन कर रहे हैं, ब्रशअप कर रहे हैं हल्का सा। और उससे प्रेरणा मिले कि हाँ, अगर ये सोते हुए उनको मारेंगे तो हम सबको मार सकते हैं। तो अश्वत्थामा शिव जी का उपासक था, शिव जी की पूजा किया, तो शिव जी उसको तलवार दी और उसके अंदर काल के रूप में प्रवेश करे, और वह अंदर गया, तलवार से उसको काटता रहा बड़ी स्पीड से। और कृतवर्मा और कृपाचार्य ये गेट के बाहर थे, तो कोई बाहर से बाहर भागता तो उसको मार देते। और हुआ ये था, भगवान को सब पता ही है, तो भगवान उस दिन पांडवों को बोले, आज हम लोग टेंट में नहीं सोएंगे, आज हम बाहर सोएंगे, अन्यत्र स्थान पे। तो भगवान वहां पे अपने भक्तों को लेकर गए थे, और इसने अश्वत्थामा सबको मार रहा था। और आप जानते हैं इसको भी मारा था, क्या नाम था, क्या नाम है, धृष्टद्युम्न को भी मारा, और उसको मारा तो तलवार से नहीं मारा, उसको रगड़ रगड़ के मारा, पूरा सर फोड़ फोड़ कर। कहा कि तुमको अगर तलवार से मारूंगा तुमको वीर गति प्राप्त हो जाएगी, तुमने मेरे पिता को धोखे से मारा है। ये सब महाभारत में वर्णन है, कंडेंस्ड महाभारत आप लोग पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है स्कॉल में, काफी इंटरेस्टिंग है। वो फाइटिंग वाला प्रसंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। काफी नींद उड़ जाएगी आपकी, तो बहुत अच्छा बात। रियली जब महाभारत पढ़ने बैठो तो एकदम ही समाधि लगने लग जाती है, लगता है कुछ बात ही ना करे, ना कुछ खाए ना कुछ करे, बड़ा अच्छा फाइटिंग, स्पेशली फाइटिंग वाला सीन बहुत अच्छा है। अब आप कहोगे कि भगवान ने बचाया क्यों नहीं, तो ध्यान दीजिए, भगवान पहले ही बोल चुके हैं कि 5 पांडवों के अलावा ज्यादा लोग बचेंगे नहीं। पहले ही वो भगवान की ही व्यवस्था थी, भगवान जान रहे थे, इसलिए उनको मारने दिया। तो खैर पांडवों को नहीं मार पाए, उनके 5 बच्चों को मार करके उनका सिर लेकर के आया। जब दुर्योधन के पास लेके आया, तब दुर्योधन के पास एक बड़ी विशेष उसको आशीर्वाद प्राप्त था कि जिस दिन उसको हर्ष और शोक एक साथ होगा, उस दिन वो मर जाए। अब किसने दिया था ये आशीर्वाद मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ शाप या आशीर्वाद जो भी रहा हो, किसी ने दिया था कि जिस दिन उसको हर्ष और शोक एक साथ होगा, वो मर जाएगा। तो उसने कहा, स्वामी स्वामी, मैं पांडवों का सिर लेके आया। गलत तो नहीं बोला, पांडवों के बेटे पांडव ही कहलाएंगे। भारत शब्द अर्जुन के लिए भी है, भारत युधिष्ठिर महाराज के लिए भी, आप देखी जाते। तो दुर्योधन को बड़ा प्रसन्नता हुई, लेकिन उसने पूछा, अच्छा वो कृष्ण कहाँ थे? जान रहा है कि कृष्ण के होते हुए है पांडवों का सिर लेके आ सके, ये तो संभव नहीं है, और कृष्ण कहाँ थे? तो अश्वत्थामा तो कुछ बोले नहीं, और कब फिर कहा, देखिए सर देखिए आप। तो जब सर उसने देखा, कहा भीम का सर लेके आओ। तो जान रहा था कि भीम का सर जो है तो फौलाद के समान था। तो उसने अपने हाथ लिया और ऐसे दबाता तो बिल्कुल तरबूज की तरह फूट जाते हो। तो समझ गया कि यह तो बच्चों का सिर है, यह तो पांडवों का सिर नहीं। तो तुरंत उसको दुख हुआ, बहुत शोक हुआ। अब शोक क्यों हुआ पता है? शोक में भी बड़ा नालायक था वो। शोक इसलिए नहीं हुआ कि बच्चे मारे गए, शोक इसलिए हुआ कि जुगुप्सितम कर्म विगरहयन्ति, इस कर्म की निंदा सब लोग करेंगे, मेरा नाम खराब होगा, इसलिए दुख हुआ। ध्यान दीजिएगा, उसको यह दुख नहीं हुआ कि पांडव के बच्चे मारे गए। जुगुप्सितम कर्म विगरहयन्ति, उसका प्रिय नहीं हुआ। क्यों? कहते हैं मरते मरते भी लोग मेरी ही निंदा करेंगे कि मैंने बच्चों को मरवाया, वो भी इस तरह से। सामने सामने युद्ध होता तो कोई बुरा नहीं मानता, अभिमन्यु को भी मारा गया था, वैसे तो अभिमन्यु को भी धोखे से मारा गया था, लेकिन सोते हुए बच्चों को मैंने वध कराया है, ये मेरी निंदा होगी इस प्रकार से, इसलिए वह बुरा मान रहा था। खाली ही था, बच्चों की मृत्यु का कोई दुख नहीं है, अपनी केवल निंदा होगी, इस कारण से दुखी। फिर वो मर गए। तो ये सब कथा हमने बताई इस श्लोक के प्रसंग में। वैसे तो इसी श्लोक को महाराज जी चर्चा भी किए थे, आपको याद हो, काफी डिटेल में किए थे हम, खाली जो मेरी मतलब स्मृति में है, मन में है, उसको रखा आपके सामने। ओके, एक बार अन्वय देख ले इसका। यदा मतलब जब, मृधे अर्थात युद्ध भूमि में, कौरव सृंजयानाम धृतराष्ट्र के पक्ष वाले एवं पांडवों के पक्ष के वीरेशु योद्धाओं में वीर गतिम, योद्धाओं के योग्य स्थान अर्थात गतेशु प्राप्त हो गए। अथो उसके बाद
वृकोदरा विद्ध, भीम के द्वारा फेंकी गई गदाभिमर्श भग्नोरुदंड, ये लाइन समझ में आ रही है? गदा के आघात से मेरुदंड टूटे हुए धृतराष्ट्र पुत्र भर्तु, राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन एवं अपने स्वामी का प्रियम अर्थात प्रियस्मा होगा, इति यह पश्चन, इति मतलब यह, और पश्चन मतलब देखते हुए, इससे मेरे प्रिय स्वामी का प्रिय होगा। द्रोणी अर्थात द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा स्वपताम, क्षमा कीजिएगा मैं वहां पे काट दिया, गला काटना बोल दिया था, सोते हुए कृष्णा सुतानाम अर्थात द्रौपदी के पुत्रों के शिरांसी अर्थात सिरों को काट कर, ये अर्थ है। मैं स्वपताम का अर्थ कर लेते लिए, स्वपताम मतलब सो रहे थे, स्वप्न स्वपताम, ठीक है। उपारहत, दुर्योधन को उपहार के रूप में दिया। तत् तस्य, इससे दुर्योधन का विप्रिय विप्रियमेव, प्रिय नहीं ही हुआ। विप्रिय विप्रियम प्लस एव, प्रिय नहीं ही हुआ, उसे पसंद नहीं आया। तथा जुगुप्सितम कर्म सर्वे विगर्हयन्ति, क्योंकि ऐसे निंदित कार्य की सब लोग निंदा ही करते हैं। उसको उतना बुरा नहीं लगा उनके मारने का, लेकिन मेरी निंदा होगी इसलिए बहुत खराब है, ठीक है। सारार्थ दर्शनी, गर्भस्थ होते हुए भी परीक्षित श्री कृष्ण दर्शन प्राप्त कर पाए, यह कहने के लिए एक कथा प्रस्तुत की जा रही है। अब आप जान रहे हो कि कृष्ण यथा कृष्ण कथोदये, भक्तों की कथा से कृष्ण कथा उदित होती है। तो इसलिए चक्रवर्ती पास समझा रहे हैं कि आप सुनोगे किस प्रकार से परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण ने गर्भ में ही मंगल आरती कराई। तो ये कृष्ण कथा हुई ना, कृष्ण के महिमा का वर्णन हुआ ना, और प्लस अभी आप इसमें कृष्ण की प्रार्थनाएं सुनने वाले हैं, उनकी महिमा का वर्णन इत्यादि इत्यादि होने वाला है। तो ये लिंक बता रहे हैं किस प्रकार से। और अभी ये पूछा गया था कि परीक्षित महाराज के जन्म बड़े दिव्य हैं, उनके बारे में भी हम सुनना चाहते हैं, तो उसी के कंटेक्स्ट में बात शुरू हो रही है। जब द्रोणी अर्थात अश्वत्थामा ने अर्थात द्रोणाचार्य के पुत्र ने द्रौपदी के पुत्रों को का शिरोच्छेदन, गला काटना, शिरोच्छेदन कर दिया, तो माता द्रौपदी विलाप करने लगी। यह वाक्य 3 श्लोकों तक है, 13, 14, 15 तक। अभी द्रौपदी विलाप नहीं कर रही हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि कृष्णा सुतानाम स्वपताम शिरांसी, बच्चों के सर काट दिए गए हैं तो विलाप शुरू हो गया होगा, स्वाभाविक सी बात। कौरव पद दुर्योधन के दल को इंगित करता है, स्पष्ट है, और सृंजय पद पांडवों को लक्षित करता है, क्योंकि सृंजय वंश का धृष्टद्युम्न उनका सेनापति था। ये आपने जनरली से फेमिलियर नहीं होंगे ना, पांडवा नाम सुना होगा लेकिन सृंजय नाम नहीं सुना होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि पांडवों की सेना को सृंजयों की सेना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो धृष्टद्युम्न का सेनापति रहा वो सृंजय वंश का था, और मुख्य कंट्रीब्यूशन जो था वो विराट नरेश की सॉरी द्रुपद द्रुपद नरेश की तरफ से था। वीर गतिम का अर्थ भीष्मोक्त युक्ति द्वारा मोक्ष, या यह नहीं होना चाहिए, सारी मिस्टेक है, या स्वर्ग है। अब इसको थोड़ा समझिए, इसका क्या अर्थ है। मैं पहले बोला था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। भीष्मदेव कहेंगे आगे जाकर कि भगवान जो कोई भी इस युद्ध स्थल में मरा उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे वीर गति का अर्थ या तो मोक्ष है जो भीष्म की उक्ति है, या फिर आप स्वर्ग ले सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि वैकुंठ से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं, वो भी अर्थ है। सत्रम क्या है, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममात्, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तो स्वर्ग का अर्थ भी ले गया था कि जहां पे वैकुंठ को भी स्वर्ग कहते हैं। तो एक तरह से दोनों ही अर्थ ले सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि एक बार कोई भगवान के धाम गया तो स्वर्ग गया, तो बात समझ में नहीं आती, और दोनों जगह भी जा सकता है अपने अधिकार के अनुसार, वो भी ठीक है, सब कुछ हो सकता है। ओके, टाइटैनिक फ्लोट भी कर सकता है। वृकोदरा विद्ध कधा भी मर्षा, इसको तोड़िए। वृकोदरा क्या समझाया, वृकोदर का मतलब क्या है, जिसके पेट में वृक नाम की जठराग्नि हो। इससे मुझे छोटा सा पास्ट टाइम याद आ रहा है उनका, मध्वाचार्य जी का, जो भीम के अवतार थे। वो छोटे थे, एकदम छोटे, और चना खा जाते थे सीधे, एकदम छोटा बच्चा चना खा जाता, वो भी किलो किलो, कोई दिक्कत ही नहीं उनको, इतनी भूख लगती थी उनको। ऐसे रहता था। और भीम भी भोजन आता था तो उसका मुख्य भाग भीम को रहता था, बाकी जो एक्स्ट्रा था वो मतलब कैसे कह सकते,
100 में से मुख्य वो ले लिए, 50% वो लिए, बाकी 50% में सब लोग खाते थे बात। और एक और इंटरेस्टिंग छोटा सा लीला याद आ रही है वो वाली, जब आप याद, खाली आप लोगों को पता है लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग लीला। जब वो ब्राह्मणों के रूप में घूम रहे होते हैं, वो जब लाक्षागृह, लाक्षागृह ना, लाक्षागृह के बाद वो जंगल में घूम रहे होते हैं, तो एक ब्राह्मण के घर में जाते हैं, और वहां पे वो ब्राह्मण रो रहा होता है, उसकी पत्नी सब रो रहे होते हैं। जानते हैं वो एक बकासुर नाम का राक्षस था जो खाता था, और उस दिन उस ब्राह्मण को अपने लड़के को भेजना था, तो कह रहे थे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, ऐसे सब लोग बोल रहे थे। कहते हैं कुंती महारानी का क्या दिक्कत है? अब कहते हैं ऐसे ऐसे असुर है, राक्षस है, वो नरभक्षी है। तो कहते हैं ठीक है, मेरा लड़का उसको मार देगा जाकर के। तो पूरा ठेला नहीं, बैलगाड़ी भर के भोजन की सामग्री व्यवस्था की गई, और भीम सब खा गए उसको। बड़ा मजा, वो खा रहे, आराम से खा रहे, और राक्षस आ कहता तू मेरा ही भोजन खा रहा है, ऐसा करके फिर वो युद्ध करते हैं, फिर वो उनको मार देते हैं काफी समय के बाद। लेकिन अर्जुन को इधर चिंता हो जाती है, तो अर्जुन यहीं से मतलब जहां चले होते हैं, एक नागास्त्र फेंक देते हैं। जब तक नागास्त्र पहुंचता है सहायता के लिए, तब तक वो पहले ही मर जाता है, तो वही फिर वो नाग के रूप में रह जाता है वहीं पे। तो ये एक घटना हुई थी एक चक्र में। फिर बाद में उसको वो नाग अन्य को परेशान करता है, तो इधर क्या नाम है, नित्यानंद प्रभु उसको शांत करते हैं, भाई रहो चुपचाप, डिस्टर्ब मत करो। एनी हम वृको पे बोल रहे थे कि सोचिए पूरा बैल गाड़ी भर के खाना खा गए भी। ठीक है, शक्तिशाली थे। वृकोदारा और आविद का अर्थ क्या समझाया गया था? क्या समझाया था? फेंकी गई। और गदा मतलब गदा, और अभिमर्श मतलब आघात। ठीक है, इसका अर्थ है भीम द्वारा फेंकी गदा के द्वारा किए गए प्रहार से उसका मेरुदंड टूट गया था। प्रियम अर्थात यह सोचते हुए कि दुर्योधन प्रसंग होगा, हुआ नहीं। अश्वत्थामा ने पांडवों के सोते हुए बालकों के सिर को उसको प्रस्तुत किया। ऑब्वियसली प्रस्तुत किया मतलब काट करके। विप्रियम अर्थात वस्तुतः दुर्योधन इस कृत्य से प्रसन्न नहीं हुआ। हर्ष अनुभव करने के पश्चात कि उसके शत्रु मर गए हैं, वह शोक करने लगा। क्योंकि उपहार देखने के पश्चात वह समझ गया कि ये सर उसके शत्रु जैसे कि भीम आदि के नहीं थे, बल्कि बच्चे मरे थे, और यह कि कुरुवंश नष्ट हो गया है। अतः वह हर्ष तथा शोक दोनों के साथ मर गया। इसकी व्याख्या मैंने कर दी आपको। कैसे इसे मालूम चला था? उसने हाथ से दबा के देखा, और वो सर जो थे बड़े सॉफ्ट थे, वो स्ट्रांग नहीं थे। वैसे इसमें छोटी सी कथा ये भी आती है, जब भीम पैदा हुए थे तो वो अपनी माँ की गोद में थे, और एक बाघ ने क्या कहेंगे, हुंकार करी। हुंकार कहते हैं, बाघ की हुंकार होती है, दहाड़, सॉरी हाँ दहाड़ होती है। तो दहाड़ हुई तो उससे वो घबरा गई, और उनके हाथ से भीम छूट गए और पत्थर पे गिर गए, पत्थर टूट गया। बताओ, क्या तो बच्चा होगा, और काफी ऊंचे से गिरे होंगे, है कि नहीं? ऊंचे से गिरे, वो पत्थर टूट गया। बताइए कैसे तो लोग भीम थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो मतलब फौलाद का शील था इसलिए। इसलिए यहाँ कहा गया है जुगुप्सितम, अर्थात सभी व्यक्तियों ने इस भयावह कृत्य की भर्त्सना करी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तात्पर्य। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहां भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने विषय में कहा है। कुछ समझाना ही नहीं इसमें। अतएव देख रहे ना, यथा मृधे कौरव संज्ञानम, जहां युद्ध समाप्त हो वहां से भागवत में कृष्ण कथा चालू हो रही है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो युद्ध के बाद के प्रसंग है वही रखे जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं दशम स्कंद में भगवान के आविर्भाव के बारे में बताएंगे। केवल यहाँ पे एक प्रसंग बस शुरू हो रहा है, इसलिए क्रोनोलॉजी मत ढूंढिए कब कौन सी घटना कब हुई, ये भागवत में नहीं रखी जा रहा है। वो देखेंगे तो बिविल्डर हो जाएंगे, ये ऐसे हुआ तो वैसे हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ऐसा नहीं है। अतएव भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि ये भगवान द्वारा कही गई है, और भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि यह कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने, इसलिए मैं इसको हाईलाइट किया हूं। ये मेरा श्लोक का तात्पर्य का फोकस पॉइंट है कि हर ये महाप्रभु को प्रिय है। देखिए, महाप्रभु की हम आराधना नाम से करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई झगड़ा विवाद इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन महाप्रभु यह भी चाहते थे कि भागवत को भक्त लोग समझें, क्योंकि भागवत के द्वारा भगवान में प्रेम होता है। भगवान को जितने भगवान के गुणों को समझेंगे तो भगवान से प्रेम होता है। और समझना तो आगे की बात छोड़िए,
सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान में प्रेम होने लगता है। बताइए कितना बड़ा साधन है। ये महाप्रभु की इच्छा था, पढ़ो भागवत ज्ञा तुम्ही भागवत तेरा स्थान है। भक्तों के संग में आकर के आप भगवान के बारे में श्रवण कीजिए, भागवत को समझिए, तो आप भागवत को ठीक से समझ पाएंगे। तो ये जब मैं इसको तात्पर्य को देख रहा था तो मुझे अच्छा लगा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं, कम से कम उसको एक अंश में हम कुछ प्रस्तुत कर पा रहे का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण हैं। अतएव भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य समान है। जैसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता का ज्ञान दो, तो महाप्रभु कह रहे हैं भागवत और भगवद गीता दोनों का ज्ञान दो। चारे देखो तारे कहो अपना उपदेश। अरे नहीं भाई, आप नया संस्करण पढ़ो। जिसको देखो उसको मिलो, उसको अपना उपदेश दो, यही तो दुनिया में चल रहा है अपना। अरे साड़ी गल सुनो, साड़ी गल सुनो, हमारी गल सुनो, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, हमारा मत सुनो। लेकिन नहीं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी मिली आप उसे कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण का उपदेश दीजिए। और बड़ी सुंदर बात महाराज बोल रहे, बहुत अच्छी बात। और शायद ध्यान दिए कि नहीं, वो कह रहे हर व्यक्ति भगवान का प्रेमी है कि नहीं। तो अगर आप कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो उसको जरूर अच्छा लगेगा, लेकिन कृष्ण की बात होनी चाहिए, हमारे अमार उपदेश नहीं होना चाहिए, अमार कथा नहीं होनी चाहिए। अमार कथा बोलबे ना, ठीक है, हमारी कथा अपनी कथा बोलने की जरूरत नहीं है, कृष्ण कथा। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने अमेरिका में जन्म लिया है, अरे भाई आप लोग नहीं समझ रहे हो, उसमें अमेरिका लिखा हुआ है, भारत लिखा। अच्छा है, नहीं मेरा पीडीएफ है। अच्छा ठीक, उसमें लिखा है भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने चाइना में जन्म लिया है। बोल तो रहे बहुत भारत, पढ़ क्या रहे हो, पाइथन है? भागवत की जगह पाइथन अजगर पढ़ रहे हो, शर्म नहीं आती। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, क्यों? क्योंकि हमारी चमड़ी के अंदर धर्म है, ये अपने को श्रेष्ठ नहीं कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। भारतीयों की स्किन के अंडर में जन्म, क्या कहते हैं, धर्म है। नौकरी करते हुए भी, कंप्यूटर पे काम करते हुए भी भागवत सुनने आते लोग, है कि नहीं? छोड़ नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं? एक वक्त बोले अरे भाई आपकी क्लास में लोग ऐसे करने के लिए नौकरी करते करते भागवत सुन रहे हैं। मैं कह रहे भाई नौकरी करते हुए कम से कम भागवत तो सुन रहे हैं, छोड़ तो नहीं रहे ना। बहाना भी कर सकते कि हम नौकरी कर रहे हैं प्रभु जी हम नहीं आएंगे। भारतीयों को अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी समय देखिए, प्रभुपाद जी के शिष्य विदेश से आकर कार्यक्रम करते हैं, 20,000 लोग आए, बताइए। अब देखिए ना, कौन सा वो स्क्वायर मैदान है, क्या कुछ तो मैदान है, भूल रहा हूँ। हाँ नहीं, इधर बॉम्बे का जो भी है, 20,000 तो हम याद है। देखिए ऐसे देखिए, मतलब वीडियो वीडियो में देखिए कितने लोग आए, कितना आग्रह है भगवान के बारे में सुनने का, है कि नहीं? क्रॉस मैदान से, ऐसे क्रॉस मैदान इत्यादि तो उस जमाने में किया व्यवस्था। और कैसे पब्लिसिटी किए होंगे उस वक्त, ना व्हाट्सएप ना टेलीग्राम ना जो कुछ भी, ठीक है। वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को, मतलब भगवत गीता को और श्रीमद् भागवतम को गंभीरता पूर्वक समझें और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। तो आप कहेंगे प्रभु जी आपको पूर्ण अनुभूति हो गई? नहीं, हम तो आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाए। हम पहले वाले भाग में हैं अभी, कृष्ण कथा को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बोला प्रभु जी आपने तो भागवत कई बार पढ़ ली होगी, हमने कहा हमने एक बार भी नहीं पढ़ी। पढ़ा के जब जैसे पढ़ा तो समझ में आ जाती। ये मैं नहीं करता हूं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी कई बार करते हैं। आपको बोले नहीं, आप लोगों को पढ़ाने के साथ हम भी पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दोष तो नहीं है ना? कई बार, क्योंकि एक्चुअली क्या है, ऐसे तो हम पढ़ लिए हैं, लेकिन पूछ ले जाए कि भाई जितनी गंभीरता से आप लोगों को पढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूं, किसी को पूछ लीजिएगा, वो कभी व्यक्ति स्वयं अपने लिए इतना कभी गंभीरता से नहीं पढ़ता है। और जितनी बार पढ़ेंगे, मैं कल इस पे क्लास दूंगा, कल कुछ और पॉइंट आएगा। कृष्ण, अब मैं हमेशा देखो कभी इतने ध्यान से नहीं पढ़ते, कभी नहीं। ऐसा नहीं कि इनसिंसियर है या कुछ लगता है, हाँ समझ में आ गया, ये हमेशा रहता है। लेकिन जब पढ़ाने बैठेंगे देंगे अरे ये तो अपना स्वार्थ लेके भी हम पढ़ रहे। जनरली मैंने अपने से क्या देखा है, कभी अगर खुद से पढ़ूंगा तो प्रथम स्कंद पढ़ा, चलो अब चौथा स्कंद पढ़ लेते हैं। अब कभी अरे चलो वो 5 छठा वाला स्कंद अच्छा लग रहा है। लेकिन अब ऐसा पढ़ाना है तो स्वाभाविक रूप से क्रमशः हम पढ़ रहे हैं, और अब देख रहे हैं कि बहुत अनुभूति भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, क्रम से पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी पता नहीं है।
और ऐसा भी नहीं कि सब कुछ पता है, सब कुछ तो पता किसी को भी नहीं है, लेकिन जितना पता है वो आपको सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? इससे त्रस्त विश्व में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सके। आप लोग को याद होगा प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में इस बात को बोले थे कि हमारी बहुत उत्सुकता है कि इस भागवत के ये भागवत के सिद्धांत पूरे विश्व में प्रचारित हो। वो ये महाप्रभु की इच्छा है और उनके मुख्य पार्षद श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा है, तो उसको पूर्ण करने के लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो द्रौपदी के विलाप को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे देखिए, माता शिशूनां निधनं सुतानां माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुरद्बाष्पकुलाकुलाक्षी तदारुदद्बाष्पकलाकुलाक्षे तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाले। माता मतलब द्रौपदी माता, शिशुनाम निधनम अपने बच्चों के निधन, सुतानाम शब्द क्यों आया है? पहले उसका अनुवाद पढ़ेंगे, मैं दोबारा गलती नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा सॉरी, क्षमा कीजिएगा। शिशु नाम सुता नाम एक साथ, अपने बच्चों के, लड़के, सुत मतलब लड़के, क्योंकि शिशु मतलब तो कोई भी हो सकता है, छोटा बच्ची और बच्चा हो सकता है, तो क्लियर करने के लिए सुतानाम बोल रहे हैं, मतलब बेटे। माता शिशु नाम निधनम सुतानाम, माता द्रौपदी अपने लड़कों के, और शिशु इसलिए बोल रहे हैं, शिशु मतलब एकदम छोटा बच्चा नहीं सोच लीजिएगा, 17-18 साल के थे, लेकिन फिर भी उनके लिए छोटे ही थे, क्योंकि वो युद्ध में भी भाग लिए थे। छोटा बच्चा युद्ध भाग में भाग नहीं ले सकता है, इतने थे कि वो लड़के युद्ध किए, लेकिन फिर भी शिशु बोल रहे हैं, बच्चा बोल रहे हैं। तो अपने बेटों के निधन को निशम्य अर्थात सुन करके, घोरम परितप्य माना, बहुत घोर मतलब समझते बहुत घोर, बहुत असह्य दुख से परितप्य माना, तप्त होने लगी, दुखी हो गई। तदा उसके बाद अरुद, तदा प्लस अरुद, वह रोने लगी। वाष्प कला कुलाक्षी, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ताम उनको, द्रौपदी को सांत्वयन सांत्वना देते हुए, सांत्वना समझते हैं, डांड ढाढ़स बोलते हैं, ढाढ़स ढांढस, कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस कहते हैं, क्या होता है इंग्लिश में? कॉन्डोलेंस कहते हैं शायद। सहानुभूति तो नहीं कहते, सांत्वना समझते हो, तीन दी आती, सांत्वना देते हुए आहा, सांत्वयन प्लस आहा, दिख रहा है आहा? कौन सी लाइन में आहा है? लास्ट लाइन में। किरीट माली, किरीट माली का अर्थ है अर्जुन जिन्होंने बहुत सारे मुकुट पहने थे या उनके मुकुट में माला थी। समझ रहे हैं अर्थ? माता द्रौपदी अपने छोटे लड़कों के निधन को सुन करके बहुत घोर रूप से परितप्त हुई, दुखी हुई, और वह उसके बाद रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू, आंखों में आंसू भर गए, और उनको सांत्वना देने के लिए अर्जुन बोले। ठीक, क्या आप लोग संस्कृत समझ पा रहे हैं या बहुत कठिन हो रहा है? अब तो मेरे ख्याल से अभ्यास होता चला गया होगा। अनुवाद, पांडवों के पांचों पुत्र की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ठांढस बनाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। एक अर्थ समझना चाहिए, विलाप का अर्थ समझते हैं? विलाप का अर्थ है रोते रोते बोल। अब मैं ड्रामा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन विलाप का अर्थ आप समझते हैं। प्राय माता जी लोग विलाप करने में एक्सपर्ट होते हैं कि नहीं माता जी? यस। कोई और कोई समझे या नहीं समझे, माता जी लोग तो बड़ी आसानी से समझ गए होंगे विलाप का अर्थ क्या है। रोती भी जाएंगी और बोलती भी जाएंगी, है कि नहीं? ऐसा ऐसा करते हो, रोती भी जाएंगी, बोलती भी जाएंगी। तो ये है विलाप का अर्थ। अन्वय मतलब तदा, उस समय, माता जननी द्रौपदी, माता द्रौपदी, शिशुनाम सुतानाम अर्थात बालक पुत्रों के, निधनम अर्थात विनाश, निशम्य को सुन करके, घोरम जो असह्य हो वैसे घोर, उसको सहन नहीं कर सकते, परितप्य माना शोक से आर्त होकर, वाष्प कला कुलाक्षी आंखों में आंसू के साथ, अरुदत रोने लगी। ताम अर्थात द्रौपदी को, सांत्वयन ढांढस बंधाते हुए, किरीट माली आहा अर्जुन ने कहा।
मेरे ख्याल से अच्छा अनबे की जरूरत लग रही है, करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। सारा दर्शन नहीं करें, ठीक है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा इसलिए करते जा रहा हूं। अर्जुन को किरीट माली कहा गया, बहुत सिंपल सिंपल टीकाएं हैं, बहुत आसान है, इसीलिए 4 श्लोक रखा हूं। अर्जुन को किरीट माली कहा गया है क्योंकि उन्होंने अनेक मुकुट स्वीकार किए, अथवा क्योंकि उनके मुकुट में एक माला थी, उस माला का नाम मैं नहीं जानता। इसे प्रश्न मत कीजिएगा कि भाई उसकी माला का नाम क्या था, कौन से फूलों से बनी हुई थी, ये सब प्रश्न मत कीजिएगा, हमको नहीं पता, टाइटैनिक डूब जाएगा। अब उनने क्या कहा, यह बड़ा इंटरेस्टिंग, इस पे कुछ विशेष टीकाएं की हैं। अभी आपने सुना ना, किरीट माली आह, अर्जुन ने कहा, तो प्रश्न होगा कि क्या कहा, तो उसको देखिए। तदा शुचस्ते प्रज तदा शुचस्ते प्रम्रजामि भद्रे तदा शुचस्ते प्रमुजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिराततायिनः यत् ब्रह्म बन्धो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे गाण्डीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे पाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। तदा का अर्थ क्या होता है? तदा मतलब तब, उस समय, शुचस ते प्रमजामि, शुचह मतलब यहाँ पे है शोक के आंसू। अब आप ये देखिए, रियली अगर आप थोड़ा सा प्रवेश करें तो बिल्कुल ड्रामेटिक स्टाइल में बोल रहे हैं, जैसे किसी ने फिल्म का डायलॉग लिखा हो। हे द्रौपदी, तुम्हारे आंसुओं को मैं तब पोंछूंगा, इसी स्टाइल से बोल रहे हैं ना। तदा शुचस शुचस्ते प्रभजामि भद्रे, हे कल्याणी, अगर ऐसे ड्रामा करके बोला जाए, हे कल्याणी, तुम्हारे इस आंसुओं को मैं तब पोंछूंगा, ऐसे ऐसे बोलेंगे ना, अगर आप कोई ड्रामा देख रहे हो ऐसे बोलूंगा। यद ब्रह्म बंधो शिर आतताई ना, जब उस ब्रह्म बंधु के सिर को, जो आतताई है, गांडीव मुक्त, गांडीव धनुष से मुक्त, ध्यान दे रहे हैं, गांडीवम उगते नहीं है, गांडीव, गांडीव मुक्तई, विशिखर, विशिख मतलब बाण, गांडीव से मुक्त किए गए बाण, मतलब गांडीव धनुष से छोड़े गए बाणों से उपाहरे, मतलब काट करके उपहार के रूप में तुमको दूंगा। क्या दूंगा? शिर आतताई, उस आतताई का सर दूंगा जो ब्रह्म बंधु है। इस स्टाइल से मैं थोड़ा सा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे ही बोले होंगे वो। गुस्से में आदमी ऐसे तो ना बोला, देखो मैं तुम्हारे शो का मार्जन तो तब कोई ड्रामा नहीं होगा। देखिए, ये आप जब भागवत पढ़ेंगे ना, तो उसको पढ़ते पढ़ते ही सो जाएंगे, तदा तो क्या भागवत का आस्वादन होगा, लेकिन थोड़ा लीला में प्रवेश कीजिए, किस प्रकार से अर्जुन बोल रहे होंगे, थोड़ा रस मिलेगा इसमें। कुछ ये भी रस है कि नहीं, क्रोध का रस है, बड़े शौर्य में वीर रस का बोल रहे हैं इसमें। त्वा प्लस आक्रम्य, त्वम प्लस आक्रम्य, तुम आक्रम्य, तो आक्रम्य, तुम उसके ऊपर चढ़ करके, उस कटे हुए सर के ऊपर चढ़ करके, यत जब स्नासी, तुम स्नान करोगी, कब? दग्ध पुत्र, अपने पुत्रों की को संस्कार कर दिए, करने के बाद उस सिर के ऊपर जब तुम चढ़ के स्नान करोगी, तब तुम्हारे आंसू पूछूंगा। बड़ा हैवी डायलॉग है, इतना अच्छा डायलॉग है, मतलब डायलॉग नहीं, मतलब ही रियली मीन्स इट, इज इट ना। अब आप कहेंगे भाई ये द्रौपदी तो बड़ी घोर स्त्री है, हमको ही बोल दिया जाए कि किसी की गर्दन कटी हो, उसके पांव रख करके स्नान करो, हमारा तो पांव ही बाबा ही, तो सोच भी नहीं सकते। मुझे तो याद है, आप अगर अपनी बात करें तो हमारा हृदय तो बड़ा कोमल है इस मामले में, किसी का खून वून नहीं देख सकते। हमें बताया था एक बार सारन ठाकुर का एक्सीडेंट हुआ, उनको बचाने के लिए गए, उनका खून खून देखकर मैं खुद ही बेहोश हो गया, रैली बेहोश हो गया। उन्होंने कहा हम क्या कर सकते, नॉट हमारे, मेरे पास खून वून नहीं देखा जाता मेरे से। श्लोक समझ में आ रहा है कि हे द्रौपदी, और एक इंटरेस्टिंग बात है कि शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भद्रे, और अन्य शब्द कितने घोर हैं। ऐसा कभी नहीं सुनते होंगे हम लोग सामान्य रूप में ना, लेकिन देखिए क्षत्रियों का इस प्रकार के बोलना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस प्रकार की वीरता के शब्द को प्रयोग करना क्षत्रियों के लिए स्वाभाविक सी बात। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि द्रौपदी ऐसा करवाना चाहती हैं।
क्योंकि अभी आप आगे देखने वाले हो कि उनका हृदय अत्यंत कोमल है। तो ये मत सोच लीजिएगा कि द्रौपदी बहुत कठोर हृदय की स्त्री है, वो महान भक्त हैं भगवान की, शुद्ध भक्त हैं। वो आगे क्लियर होगा, लेकिन यहाँ एक आवेश में अर्जुन इस प्रकार से बोल रहा है। अर्जुन भी नहीं भूलेंगे, सब बातें क्लियर होंगी, लेकिन यहाँ एक उनको ढांढस बधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए इस प्रकार के शब्द यूज कर रहे हैं। और उनका स्टाइल वैसा नहीं होगा, देखो अब जो होना था हो गया, ठीक है, सहन कर लो, चुप हो जाओ। ये क्षत्रिय लोग इस प्रकार से नहीं सांत्वना देते हैं। तो इसलिए अर्जुन इस प्रकार से बोले, हे भद्रे, हे कल्याणी, तुम्हारे आंखों में जो आंसू हैं, उनको मैं तब मार्जन करूंगा, उनको तब पोछूंगा, जब उस ब्रह्म बंधु के सिर को, जो आतताई है जिसने हमारे बच्चों को मारा है, उसको काट करके, कैसे, अपने गांडीव धनुष से, मुक्त के बाणों से काट करके तुम्हें उपहार के स्वरूप दूंगा। उसके उसके सर के ऊपर पांव रखकर, आक्रमण से चढ़ करके तुम स्नान करोगी, अपने पुत्रों का दाह संस्कार करने के बाद तब तुमको शांत, नहीं तो तुम शांत नहीं होगी, मैं जान रहा हूं, इस प्रकार की बात। लेकिन फिर ध्यान दीजिएगा, ये अर्जुन की तरफ से सब वाक्य हैं। द्रौपदी ऐसा चाहती हूँ ऐसा नहीं है। द्रौपदी नहीं कह रहे हैं कि उसका सर काट के लेके आओ, केवल विलाप कर रही है। बहुत ध्यान दीजिएगा, द्रौपदी कहीं नहीं कह रहे सर काट के लेके आओ, केवल उनको सांत्वना देने के लिए अर्जुन इस प्रकार से कह रहे हैं। पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए, द्रौपदी कभी नहीं बोलने से सर काट के लेके आओ, केवल रो रही, रोएगी नहीं माँ, बताइए। जवान लड़कों को इस प्रकार से मार दिया जाए तो वीर गति को प्राप्त होगा तो भी रोएगी, लेकिन कहाँ, ठीक है, सातवां रहेगी युद्ध में मरा, लेकिन बेचारा सोते समय गला काट दिया जाएगा तो कितना खराब लगेगा, और पांचों के पांचों पुत्रों को, है ना। तो ये बात है, ठीक है। इसके संबंध में एक सन्यासी, बहुत पहले मैं उनका प्रवचन सुन रहा था, तो कह रहे जब तक हम लोग को पिक्चर नहीं दिखाई जाए तब तक हमारे कोई इमोशंस नहीं आते, हम लोग इतने डल हैं। मान लो कोई लीला सुनेंगे, हाँ ठीक है, भगवान महाप्रभु सन्यासी है, ओके। कितना इंटेंस है इट नॉट, माता सची रो रही हैं। अभी तो माता सची रो ही नहीं रही हैं, बिल्कुल स्तंभित है। तो जैसे जैसे एडवांस डिवोटीज हैं वो इस लीला में बिल्कुल प्रवेश कर जाएंगे। हम लोग तो ओके, ठीक है, मार दिया, नेक्स्ट, पांचों, नेक्स्ट, नेक्स्ट श्लोक नंबर क्या था, ठीक, ओके। ठीक है, हमारी स्थिति इसी प्रकार की है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, जो भी है आगे पढ़ते हैं। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारे आंखों से आंसू पूछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। इसमें बाल प्रबोधनी बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनिए। शुचः अर्थात शोक समूह, मतलब जो शोक समूह के कारण उनके आंसू गिर रहे थे, वो सब शोक दूर करूंगा। यद अर्थात जब मैं उस ब्रह्म बंधु, अर्थात ब्रह्मादम, इसको समझना चाहिए, ब्राह्मणादम का अर्थ क्या है, बंधु मतलब होता है मित्र। तो ब्रह्म बंधु का हो गया मतलब ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का पुत्र है या ब्राह्मण का मित्र है। तो पुत्र या मित्र हो जाने से व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ उसको उनको ब्रह्म बंधु कहा जा रहा है, इसलिए ब्राह्मणाधम कहा जा रहा है। ब्राह्मणों में अधम, उसके पास ब्राह्मण के गुण नहीं है। अगर गुण होते तो क्या इस प्रकार का जुगुप्सित कार्य करता, खराब कार्य करता, निंदित कार्य करता, इसलिए बोले। और क्या कह रहे हैं, आतताई ना, अर्थात शास्त्र, ओ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, शास्त्र नहीं शस्त्र होना चाहिए। शास्त्र पाणी नहीं, शास्त्र पाणी होता तो हाथ में शास्त्र होता और ब्राह्मण कहलाता, तो ये मिस्टेक है। हमारे एडिटर्स इतना अच्छा है कि खाना प्रसाद देने में तो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन एडिटिंग करने में कहाँ गए एडिटर्स, शक्ल तो देखें जरा, हाँ दो एडिटर्स, ठीक है, तो वो एडिटिंग ठीक से नहीं करते हैं, सारी एडिटिंग दिखाई नहीं पड़ा आपको, शास्त्र पाणी, शस्त्र पाणी। खैर मैं मान रहा हूँ कि फिलोसफी कलर आपको करेक्ट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, तो इसलिए हम अपने शब्द वापस लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, ये मेरी गलती है। शास्त्र पाणी नहीं है, ये शस्त्र पाणी है। शस्त्र पाणी मतलब जो शस्त्र को हाथ में रख रखा है, उसकी एडिटिंग करके दोबारा ठीक करके भेजूंगा, बट अभी आप समझ लीजिए, शस्त्र पाणी का मतलब है जो अपने हाथ में शस्त्र, कौन सा शस्त्र था हाथ में अश्वत्थामा के, अश्वत्थामा के शस्त्र हाथ में कौन सा शस्त्र था, तलवार। बस यही चेक कर रहा था कि आज आपने आज की बात याद है कि नहीं। ब्रह्मा, ब्रह्मा कहां से आ गए भाई इसमें, ब्रह्मास्त्र नहीं चला है अभी, खड़क, यस, खड़क या तलवार के लिए। शस्त्र प्राणी अश्वत्थामा के मस्तक को अपने धनुष से निकले बाणों के द्वारा काटकर
उपहार स्वरूप तुमको दूंगा, तभी मैं तुम्हारे शोक को दूर करूंगा। एक बात आप देख रहे हैं कि कितनी काव्यात्मक बात बोल रहे हैं। गांडीव मुक्त, गांडीव से मुक्त किया जा रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि, ऐसा नहीं बोल रहे हैं गांडीव से फेंके जा रहे हैं। गांडीव को से आप देख रहे हैं कि अगर धनुष चलाया जाता है तो उसमें बाण कुछ समय के लिए बंधन में रहता है और फिर छोड़ देते हैं उसको। कुछ समझ रहे हैं मुक्त का? शब्दों को देखिए, भागवत कितने सुंदर तरह से इस्तेमाल किया। गुस्से में बोल रहे हैं लेकिन शब्द कितना सुंदर है। गांडीव मुक्त, गांडीव से मुक्त किए गए बाण। समझ रहे हैं ना? उसको पहले खींचते हैं, तानते हैं, फिर छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं। प्रत्यंचा तो अलग चीज है। प्रत्यंचा चढ़ाने का मतलब होता है बांध देना, लेकिन हाँ उसको प्रत्यंचा ही कहते हैं शायद। और साए साए निकल रहे। इस पे मुझे एक बात याद आ रही है कि जब भीम और अर्जुन और भगवान कृष्ण, हाँ क्या नाम, जरासंध के पास जाते हैं, तो वो अर्जुन का हाथ देखते हैं। ये पता होना चाहिए कि भाई ये स्टेन गन नहीं गड़गड़ गड़गड़ चला रहे हैं। वो जब ऐसे प्रदर्शन चलती है तो उनके हाथ में भी रगड़ मारती है, उसका निशान हाथ में था। कह रहे तुम तो सब क्षत्रिय लग रहे हो। फिर भगवान कहते हैं हाँ, हम क्षत्रिय ही हैं, हम तुमसे युद्ध के लिए भिक्षा मांगने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात प्रबोधिनी समझनी होगी आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग। पहले हाँ आतताई का अर्थ समझ लीजिए। स्मृति के अनुसार, स्मृति मतलब पुराण आदि के अनुसार 6 प्रकार के आतताई होते हैं। ये आप भगवत गीता में भी सुने हो। अग्निद, गरदश्चैव, शस्त्रपाण धनापह, क्षेत्र दारापहारी च षड एते आततायिनः। अग्निदा मतलब अग्नि देने वाला, अर्थात घर को आग लगाने वाला। गरद मतलब जहर देने वाला। शस्त्र पाणी, शस्त्र हाथ में लेकर के प्रहार करने वाला। धन आपह, और धन को छीनने वाला। 4 हो गए, 1 2 3 4। क्षेत्र धारा अपहारी, भूमि का छीनने वाला या पत्नी को छीनने वाला। ये 6 आतताई हैं और इनको मारने में कोई दोष नहीं माना जाता। जरा थोड़ा सा एक चीज विचार कीजिए कि क्या इस प्रकार के आतताई कौरव पांडवों के प्रति थे कि नहीं? अग्निदत्त थे कि नहीं? लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, जलाई तो खुद नहीं, लेकिन जला तो स्वयं भीम ने दिया था, लेकिन अपनी व्यवस्था तो बना के चले चले थे कि इनको जला दिया जाए। जल जहर दिया था, भीम को दिया था। शस्त्र पाणी, अटैक तो बहुत बार किया। धन छीना, छीना। क्षेत्र छीना, छीना। और पत्नी को छीनने का प्रयास किया। हर प्रकार से आतताई थे। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि अश्वत्थामा ने उनके बच्चों को शस्त्र हाथ लेकर के मार, शस्त्र को हाथ में लेकर के मार दिया। 6 आतताई होते हैं। आतताई मतलब परेशान करने वाले। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र से प्रहार करने वाला, धन चुराने वाला, संपत्ति चुराने वाला और दूसरे की पत्नियों का हरण करने वाला। वशिष्ठ स्मृति 3:19। बाल प्रबोधिनी, श्री अर्जुन के वाक्य को यहाँ कह रहे हैं। पिछले श्लोक में कहा था कि किरीट माली आहा, किरीट माली ने कहा तो क्या कहा, ये बोल रहे हैं। अब ब्रह्म बंधु पे क्या कह रहे हैं? ब्रह्म बंधु पद से उसके वध में दोष का अभाव सूचित होता है। ब्राह्मण होता तो मार में दोष होता, ब्रह्म हत्या लगती, लेकिन ब्रह्म बंधु है तो कोई दिक्कत नहीं, मारा जा सकता है। उसका ब्रह्म बंधु, उसका ब्रह्म बंधुत्व कैसे घटित हुआ? क्यों कह रहे हो कि वो ब्रह्म बंधु है? ब्राह्मणों में अधम है, अगर यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं आतताई। और ऐसे आतताई के वध में दोष नहीं होता, ये स्मृति का अनुरोध है। समझ रहे हैं? ब्राह्मण, एक ब्राह्मण इस प्रकार का आतताई नहीं हो सकता जिसकी व्याख्या अभी आपने सुनी। क्या थी? अग्नि से देने वाला, जलाने वाला, जहर देने वाला, शस्त्र से प्रहार करने वाला, धन छीनने वाला, जमीन छीनने वाला और पत्नी को छीनने वाला। ये काम ब्राह्मण का नहीं है। तो आतताई है तो अपने आप ही ब्राह्मण के पद से गिर गया। समझ में आया? और इसने शास्त्र, हे भगवान फिर मिस्टेक, उसने शस्त्र ग्रहण पूर्वक बच्चों की हत्या करी है, अतः यह आतताई है। आप लोग थोड़ा सा सारग्राही बनिए, श का सा हो जाता। एक्चुअली क्या है, इंग्लिश में हम टाइप करते हैं ना SHASTRA, तो शास्त्र भी टाइप कर देगा और शस्त्र भी कर देगा, उधर ध्यान नहीं गया, इसलिए शस्त्र ग्रहण पूर्वक होना चाहिए। समझ गए? शास्त्र ग्रहण का कोई मतलब नहीं। इसके सर को काटने का मेरा साधन तो अलौकिक है। इसको गांडीव नामक धनुष से मुक्त बाण से कह रहे हैं। समझ रहे हैं? भाई अश्वत्थामा भी बहुत शक्तिशाली था, तो उसके सर को काटना इतनी आसान बात नहीं थी। ऐसा नहीं कि जैसे कोई गाजर मूली काटता है कि मैं खेत से जब मूली काट के लाऊंगा तब तुम्हारे शोक को दूर करूंगा, ऐसा नहीं था। उसके पास भी ब्रह्मास्त्र इत्यादि थे। समझ रहे हैं बात को? इतना आसान नहीं था। अश्वत्थामा बहुत शक्तिशाली था।
तो कह रहे हैं कि उसको मेरा सामर्थ्य है उसे काटने में, क्योंकि गांडीव, और गांडीव किसने दिया था? शिव जी ने दिया था, जहां तक स्मरण कर रहा हूं मैं। गांडीव, हाँ गांडीव शिव जी ने दिया था, यस। गांडीव शिव जी ने दिया था, और वो अकाट्य था, कोई उसको काट नहीं सकता था, इसलिए। भद्रे इस संबोधन से यह सूचित कर रहे हैं कि तुम्हारे सौभाग्य से मेरा मरण तो नहीं होगा। भाई हो सकता है कि आप युद्ध करने जाओ, अश्वत्थामा आपको ही मार दे। तो क्या क्या तो आचार्यों ने सोचा है, तुम कल्याणी हो, तुम सौभाग्यवती हो, मेरा मरण नहीं होगा। वैसे भी देख रहे हो कि मेरा मरण नहीं हुआ, अभी तो अश्वत्थामा मारने का प्रयास किया, नहीं हुआ। और अभी भी मैं को मारने जा रहा हूं, तो मैं मरूंगा नहीं, उसी को मार के लेके आऊंगा। अद्भुत विचार है। अब प्रम्रजामी को बड़ा अच्छे से बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। प्रम्रजामी शब्द से वर्तमानत्व के निर्देशन से यह सूचित कर रहे हैं कि इसमें विलंब नहीं होगा। देखिए, करोमि मतलब मैं करता हूं, वर्तमान, गलत तो नहीं कह रहे हैं। प्रम्रजामी मतलब मैं मार्जन करता हूं, मार्जन करूंगा ये तो नहीं है होगा ना। और अभी तक हम अनुवाद में क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हारे आंखों के या तुम्हारे शोक का मार्जन तब करूंगा जब उसका सिर काट के लाऊंगा। तो यहाँ पे वर्तमान क्यों, क्रिया क्यों ले रहे हैं? मैं, समझिए, ऐसा ऐसा इसको अगर एग्जैक्ट अनुवाद करें, मैं तुम्हारे शोक के आंसू का तभी मार्जन करता हूं जब उसका सर काट के लेके आऊं। कुछ एग्जैक्ट सेंस पकड़ पा रहे हैं? मतलब इसके सर काटने में कुछ समय नहीं लगा, बोलते अभी बस बना के लेके आ रहा हूं। बन नहीं पाया है, खाना बन नहीं गया है, लेकिन बस अभी ला रहा हूं। तो इससे भाई वर्तमान क्रिया चल रही है ना। प्रमृजामी, मैं पूछता हूं, इस एक्चुअली अनुवाद इस प्रकार से हुआ। तो ये कितना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत जल्दी ही इसके सर को काट करके लेके आऊंगा, तुमको बहुत देर रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी द्रौपदी। एक भक्त का कमेंट है कि शिव जी ने पाशुपत्र अस्त्र दिया था, गांडीव नहीं दे सकते हैं। अब मुझे नहीं पता, लेकिन गांडीव किसने दिया था, लेकिन जो है ओपिनियन शिव जी ने दिया। ठीक है, पूछ बताऊंगा शिव जी से। अरे जहां फोकस कर रहे हैं उधर ध्यान दीजिए। परम्रजामी समझ में आ रहा है, वर्तमान सूचित हो रहा है, इसका मतलब है बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ही उसे गर्दन काट करके तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम्हारे शोक को दूर करूंगा। ठीक है। हम लोग तो केवल देखिए आचार्यों के जो झूठन है उसी का आस्वादन कर सकते हैं। हमारी तो ये, ईमानदारी से बोलिए, हम लोग कुछ सोच भी नहीं सकते ना प्रम्रजामी का मतलब क्या होगा, और इतना देखेंगे इत्यादि इत्यादि। जब मैं इसके अर्थ को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना सूक्ष्म दृष्टि है आचार्य प्रभुपाद जी का तात्पर्य। प्रभुपाद आतताई की व्याख्या करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है, या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फांसता है, वह आतताई। स्पष्ट है। ऐसा आतताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों ना हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की, तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया, उसमें तो कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है, बच्चों को निर्मम रूप से मार दिया, अतः वह आतताई था, और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। कोई व्याख्या की जरूरत नहीं, बड़ा स्पष्ट है। आप लोग की प्रसन्नता के लिए आखिरी श्लोक आज। देखिए, जो चीज स्पष्ट है वह मैं अज्यूम कर लेता हूं कि स्पष्ट है। अगर आप लोगों को कुछ कभी लगे कि भाई कोई प्रश्न है, तो आप उसको निसंकोच पूछ सकते हैं। इजी था ये, तो समझ में आ रहा होगा। अब वह उसको बोल करके क्या किए, इस श्लोक में बोल रहे हैं। इति प्रियाम वल्गु विचित्र जलपै, इति प्रियाम्बल्गु विचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्र सूतः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवदंशित उग्रधन्वा अन्वान्द्रवन्दंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेना। कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इति प्रियाम, प्रियाम का अर्थ है द्रौपदी, जो उनकी पत्नी थी। इति इस प्रकार,
अपनी पत्नी द्रौपदी को वल्गु विचित्र जल पे, वल्गु मतलब बहुत मनोहारी, आए मनोहारी। अब आप फिर सोचेंगे अरे द्रौपदी तो बड़ी घोर स्त्री होगी, इतनी कठोर बात सुन करके उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वल्गु कैसे हो गया? हमको भी समझ नहीं आ रहा, ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। एक अगर समान अर्थ लेकिन यथाश्रुत अर्थ से कह सकता है कि भाई हाँ, दुखी है तो जिसने बच्चों की हत्या करी है उसको दंड प्राप्त करके खुश हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ द्रौपदी जी के बारे में सुना तो नहीं जा रहा है कि वो खुश हो रही हैं सुनकर, कुछ भी रिस्पॉन्स तुम नहीं सुन रहे, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं सुन रहे कि वो खुश हुई हैं। लेकिन अब जो भी है, लिखा है वल्गु मतलब मनोहारी, अच्छे, विचित्र जल पे, और बड़े ही विचित्र जल बोला अर्जुन जी ने क्रोध में, स शांतयित्वा उनको सांत्वना देकर, अच्युत मित्र सूता, अच्युत मतलब भगवान कृष्ण जो उनके मित्र हैं और उनके सारथी भी है, अभी भी सारथी हैं भगवान कृष्ण। अन्वाद्रवद, अन्वाद्रवद, अनुद्रवद, किसके पीछे भागे? अश्वत्थामा रथ लेकर भागा, तो उनके पीछे भगवान कृष्ण सारथी थे, वह रथ लेकर के अर्जुन के संग उसके पीछे चले गए। दंशिता मतलब, दंशिता मतलब कवच पहन करके, कवच पहना क्योंकि युद्ध करना है। उग्र धनवा मतलब उग्र धनुष लेकर, धनुष का नाम क्या था? गांडीव। कपित ध्वजा ये अर्जुन का नाम है। कपित ध्वजा जिनके रथ के ध्वज के ऊपर हनुमान जी थे। अब इस पर भी कहानी है, थोड़ी सी कहानी सुना देंगे, मेरे पास थोड़ा समय है। गुरुपुत्रम रथेना, गुरुपुत्र के रथ के पीछे भागे, रथ से ही भागे, स्वाभाविक सी बात। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। मैं अन्वय बहुत इजी है। इति वल्गु विचित्र जल्प, इस तरह मनोहर तथा विचित्र बातों से प्रियाम प्रिय पत्नी द्रौपदी को सांत्वयित्वा सांत्वना प्रदान करके, अच्युत मित्र सूत जिनके मित्र तथा सारथी भगवान श्री कृष्ण ही थे, दंशितः ऐसे कवच बांधे हुए तथा उग्र धनवा भयंकर धनुष धारण किए हुए। शारंग धनु का अर्थ क्या होता है? शारंग धनवना का अर्थ क्या होता है? कृष्ण तो है, व्याख्या कीजिए। जे शारंग नाम के धनुष को धारण करते हैं, तो उग्र धनुष समझ में आया, जिसका धनुष बहुत उग्र था, गांडीव धनुष, उसको उठाना बहुत मुश्किल था, समझ लीजिएगा। इतना ऐसा नहीं है कि धनुष की धारणा भी हम क्या करते हैं, कितना बड़ा धनुष होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो मैंने सुना कि पृथ्वीराज चौहान की जो भाला इत्यादि था वह भी पता नहीं 50 किलो का, हाँ 70 किलो का बता रहे हैं, ऐसा कुछ था। जैसे हमारे करना मित्रों की कढ़ाई 200 किलो की होती है, समथिंग लाइक दैट, समथिंग। उग्र कढ़ाई, उग्र कढ़ाई, वाह, समथिंग लाइक दैट। उग्र धनवा मतलब उग्र धनुष वाले। देखिए यही होता है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वो धनुष तो मतलब इतना होता होगा, ऐसे नहीं, कितना विशाल धनुष, और कितना उसका मतलब वेग से बाण निकलते होंगे। मतलब कल्पना, मैं तो कभी नहीं समझ पाया कि अकेले अर्जुन एक साथ बाण चलाते, हजारों बाण एक साथ चलाते, कब चढ़ा रहे हैं, कब मतलब चला रहे हैं, वो पकड़ नहीं पाते, एकदम स्टेन गन की, मशीन गन की तरह गड़ 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 गड़। हाँ, और दोनों हाथ से वो एक्सपर्ट हो चलाने के लिए, सब्यसाची कहा जाता है, अद्भुत थे। कपित ध्वजा अर्थात अर्जुन ने रथेना रथ के द्वारा कुरुपुत्रम अन्वाद द्रवत अपने गुरु के पुत्र अश्वत्थामा का पीछा किया। देखिए कितना सुंदर है, अर्जुन को अर्जुन भी बोल सकते थे, लेकिन कपित ध्वजा बोल रहे हैं। इसके पीछे भी कथा है, उसको मैं एंड में सुना दूंगा। सारार्थ दर्शनी, अच्युत मित्र सूत का अर्थ है जिसके पास कृष्ण मित्र और सारथी के रूप में है, मतलब उनके लिए भय का कोई स्कोप नहीं है। भगवान व्यवस्था करेंगे कि अश्वत्थामा को दंड प्राप्त हो। दंशितः का अर्थ कवच धारण करना है। अब जरा देखिए इधर बाल प्रबोधिनी को, प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसमें नहीं है, अर्जुन के भय का कोई कारण नहीं था,
इसको स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं अच्युत मित्र सूत। देख रहे हैं कि चक्रवर्ती पाद के बाद ही में आए हैं, तो कई बार चक्रवर्ती पाद की टीकाओं को लेते हैं, मोस्टली श्री स्वामी को लेते हैं। अब जरा देखिए अच्युत की व्याख्या क्या कर रहे हैं। अच्युत अर्थात जो अपने स्वरूप और गुणों से कभी च्युत नहीं होते, अथवा जिनके भक्त कभी च्युत नहीं होते, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र और उनके सारथी के रूप में उनके साथ थे। इसका अर्थ क्या है यहाँ पे, इसका रेलेवेंस ये है कि देखिए भगवान के भक्त अर्जुन ने एक संकल्प लिया है ना। क्या संकल्प लिया है कि उस आतताई के सिर को काट करके मैं तुम्हें उपहार के रूप में प्रस्तुत करूंगा। तो इसमें न सिर्फ अर्जुन का संकल्प है, उसको सत्य कराने की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर भी आती है, और भगवान कभी अपने संकल्प से डिगते नहीं। जैसे आप जानते हो, क्या नाम था, जयद्रथ को मारने का संकल्प लेकर के अर्जुन सो रहे हैं आराम से, और भगवान को नींद नहीं आ रही। अब भगवान उनसे पूछे, भाई तुमने ऐसा व्रत क्यों ले लिया, तो आप हैं, कह रहे मुझको नहीं, तुम आराम से सो रहे हो, तो आप हैं। और आप देख लिए, आप उस प्रसंग को कभी सुनिए। वैसे जो लोग भी अंग्रेजी आती है, महाभारत कंडेंस जरूर लीजिए। गरीब लोग हैं बेचारों के पास 100 रुपए भी नहीं है, मैं स्पॉन्सर करवा देता हूँ। रियली बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको महाभारत पढ़ने की इच्छा थी तो कंडेंस तो पढ़ ही लीजिए, बहुत अच्छा है। किस प्रकार से डिटेल में, वो सब सीरियल में नहीं दिखाते ठीक से, इतना सुंदर था। यह भी था कि ये बीच में जब वो जयद्रथ से लड़ने जा रहे हैं तो काफी समय बीत गया, कई किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं यहां से लेकर के गोमाता ऑफिस से जाना है, कई कई किलोमीटर के चक्रव्यूह थे, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। एक जगह उनके घोड़े थक गए, तो भगवान अर्जुन कुछ, भगवान कुछ व्यवस्था करते हैं, भूल रहा हूँ क्या, लेकिन वो अर्जुन बाण मारते हैं, वहां से पानी निकलता है, घोड़े पानी पी रहे होते हैं, उससे भगवान कुछ व्यवस्था करते हैं कि उन पर कोई अटैक ना कर सके। हर क्षण भगवान उनकी रक्षा करते हैं। फिर अंत तो आप जानते ही हैं कि सूर्य को छुपा देते हैं भगवान कृष्ण, फिर सूर्योदय करा देते हैं। कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है कृष्ण। कोई उनको, ये नहीं कि कोई उनको बुरा बोलेगा, भला बोलेगा, तो कभी भी अपने, उनके भक्त च्युत नहीं होते, वह खुद अपने स्वरूप से अपने भक्तों पर कृपा करने से च्युत नहीं होते, तो इसलिए अच्युत मित्र सूता कहते हैं। और आप तो देख सकते हैं प्राय युद्ध समाप्त हो गया था, फिर भी भगवान अपने सारथी गौरव को नहीं छोड़े। ठीक है भाई, हमारा टाइम खत्म, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं, जब तक पूरा समाप्त नहीं है भगवान लगे ही पड़े, अभी भी सारथी बने हैं। युद्ध तो समाप्त हो गया ना, फिर भी सारथी बने हुए। उग्र धनवा से क्या सूचित होता है, उग्र धनवा से यह सूचित होता है कि शत्रुओं द्वारा उनका धनुष नहीं, नष्ट नहीं किया जा सकता था। तो अगर युद्ध होता तो अश्वत्थामा कभी उनका हरा नहीं सकता। कपि अर्थात हनुमान जी उनके ध्वज पर थे। तो यहाँ तक तो समाप्त हो गई कथा। मैं छोटी सी और कुछ एक दो कथा बोल के रुकूंगा। जो मुझे स्मरण आ रहा है, आप जानते हैं कि भीम एक बार कुछ फूल लेने के लिए कहीं जा रहे थे, और रास्ते में कौन आए थे, हनुमान जी लेटे हुए थे एक बंदर के रूप में। और भीम ने कहा अपनी पूंछ हटाओ, हटाओ अपनी पूंछ। और पूंछ भी बड़ी लंबी सी थी। हनुमान जी कहते हैं अरे भाई मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, मैं अब अपनी पूंछ नहीं हटा सकता हूँ, ऐसा करिए आप ही हटा दीजिए। अब भीम को लगा भी तो बड़ी अजीब सी बात है, किसी पे लांघना नहीं चाहिए, तो बड़े कल्चर्ड व्यक्ति थे। तो एक हाथ से प्रयास किए, नहीं उठा, फिर दोनों हाथ से पूरा ताकत लगाए, फिर भी उनकी पूंछ हिलने वाली लगी। तब वो समझ गए कि ये कोई विशेष व्यक्ति है। बोले आप कौन है, अपना दर्शन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, क्या नहीं, पवन पुत्र हनुमान। तो फिर उन्होंने कहा कि हम लोग अभी आगे युद्ध करने वाले हैं, तो हम आप आपकी सहायता चाहते हैं। तो कहा भाई मैं युद्ध करूंगा तो फिर हनुमान जी युद्ध करते तो फिर कितने दिन का होता है, एक सभी को गदा से पीट पीट खत्म कर देते। तो कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन आपके युद्ध में सहायता करूंगा। अर्जुन के ध्वजा के ऊपर मैं मतलब विराजमान रहूंगा। और आप जानते होंगे कि जब भी कोई युद्ध होता था, तो हनुमान जी बहुत जोर से दहाड़ते थे, सो दहाड़ को सुनकर लोगों की हालत खराब हो जाती थी, उसी में गिर जाते थे। तो ऐसे करके बजरंगी भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद देने पर था। तो आप देख सकते हैं भगवान की, भगवान की मिशन में शायद में संलग्न हुए अर्जुन, तो हर प्रकार की सहायता अर्जुन को प्राप्त हुई थी। ठीक है, आई वॉन्ट प्रभु कंडेंस्ड महाभारत विल गिव यू माय डियर डिवोटी, will give you. Don't worry. You chant 150 rounds next time. We'll give you as a gift. Don't worry. You don't have to chant that much. Okay. बहुत दुख होता है सुनने से, सारा वृतांत आंखों के सामने जल छल रहा हो। ठीक है, अच्छी बात है, विलाप मत कीजिएगा। क्या कहीं लेक्चर का पीडीएफ मिलता है क्या? मुझे जूम आईडी यूट्यूब से मिला है। हाँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।
वी कीप एन आई ऑन शास्त्रिक एरर्स ऑल्सो, विल कीप एन, ठीक है ठीक है, नहीं ये आपकी गलती नहीं थी। अग्निदेव ने दिया, हाँ अग्निदेव ने दिया था, गांडीव अग्निदेव ने दिया था, अग्निदेव ने गांडीव नहीं दिया था, अग्निदेव ने रथ दिया था। अब याद नहीं आ रहा गांडीव कौन दिए थे, ठीक है, इस पे कोई कह रहा है वरुण देव दिए थे, भाई मैंने नहीं दिया था, ठीक है, मुझको नहीं पता, एक बार ऐसे कोई विरोध के लिए बोल रहा था लेकिन नहीं, हाँ याद नहीं आया। शिव जी ने दिया था, ठीक है, खांडव प्रस जलाने पर अग्निदेव ने क्या दिया था, अरे भाई मुझे नहीं पता कि क्या दिया था, मुझे नहीं पता। ओके, कोई प्रश्न है? वरुण देव जी, अरे भगवान सब पीछे लगे उसके ऊपर, अब इस पे भारा हो रहा है 81 किलो का, अरे कोई प्रश्न करो ना, डिटेल्स में क्यों फंस रहे हैं? भीमसेन जी वर गोइंग ऑन गंधमादन पर्वत, हाँ जी ठीक है ठीक है, ओके। ये अच्छा प्रश्न है। द्रौपदी तो भगवान की परम भक्त थी, तो फिर बच्चों के मारे जाने पर वो विलाप क्यों कर रही थी? देखिए, डिवोटीज आर नॉट कोल्ड हार्टेड, डिवोटीज आर एक्सट्रीमली सॉफ्ट हार्टेड। भगवान से आसक्त हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका हृदय एकदम कठोर है, अपितु हृदय एकदम सॉफ्ट हो जाता है। जब भक्तों का मतलब शरीर भी छूटता है, हम भक्त जानते भी हैं कि भक्त भगवान के पास गए, फिर भी उनसे विरह का अनुभव करके कितना कितना आचार्य रोए हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी रो रहे हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वी डोंट हैव एनी इमोशंस, बल्कि इस समय हमारा हृदय बहुत कठोर है। भक्ति करने से तो मासृण एकदम हृदय सॉफ्ट हो जाता है। और ये आप देखिएगा कितना उनका हृदय सॉफ्ट है, तो विलाप करना एक स्वाभाविक है। माता का बेटे को मार दिया जाए इस तरह से, पांच पांच बेटों को, जवान बेटों को, तो माता रोएगी नहीं? क्या बोलती हूँ, मैं ब्रह्म का ध्यान कर रही हूँ, तो डांट नहीं रहा हूँ, ये समझना आपको पड़ेगा इस प्रकार से कि भक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि जैसे ये क्या नाम है, गार्ग मुनि प्रभु और ब्रह्मानंद प्रभु, इनको प्रभुपाद जी ने बोला कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रीचिंग करो, ये लोग गए भी, और कुछ कारणवश संपर्क टूट गया, और ये खबर आई कि वहां पे कुछ विदेशी लोगों को मार दिया गया, गला काट दिया गया। प्रभुपाद जी इतना चिंतित हो गए, सो नहीं पा रहे थे, और जब ये दोनों लोग आए तो प्रभुपाद इनको गले से लगा कर एकदम रोने लगे कि तुम लोग मेरे कहने पे पाकिस्तान चले गए। और प्रभुपाद वाकई बहुत चिंतित थे। उसी तरह तमल किश महाराज जब इधर मायापुर की जनी लेने के लिए गए थे, पूरी रात प्रभुपाद सो नहीं पाए थे। या अभी आज मैं सुबह प्रभुपाद जी का स्मरण कर रहा था बात को कि प्रभुपाद जी इस समय शरीर छोड़ने के लिए मतलब समय था, और कुछ भक्त उनसे मिलने नहीं आ रहे थे। प्रभुपाद एकदम बोले कि एक जगह बोले, हैज माय एसोसिएशन बिकम सो पॉइजनस दैट पीपल डोंट वांट टू मीट मी। तो हम सोच रहे हैं कि शुद्ध मतलब भाव था कि मेरे से भक्त लोग मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान के भक्त भगवान में आसक्त हैं तो भक्तों से मिलना नहीं चाहते, ये भक्तों से कृष्ण कथा नहीं करना चाहते, ये जो एडवांस डिवोटी हैं वो तो अपने में रमे रहते हैं, उन्हें दूसरे को मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता। डोंट थिंक लाइक दिस, दे हैव दे आर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स वाले फीलिंग्स हैं उनकी, समझ रहे हैं ना मेरी बात? दे आर नॉट कोल्ड हार्टेड, वेरी सॉफ्ट हार्टेड। ओके, लेकिन अच्छा प्रश्न था। अर्जुन नहीं रोए थे अभिमन्यु की बात से, हाँ हमारे महाराज बहुत अच्छा उत्तर दिए, पूरा नहीं किया इसको। भक्तों को भी दुख होता है, अर्जुन को भी दुख हुआ अपने बच्चे के मरने का, और इधर भी दुख हुआ, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं भूलते। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद, अभिमन्यु की बिल्कुल बिल्कुल गलत मृत्यु थी, और वो भगवान कृष्ण पे आक्षेप नहीं किया कि भगवान आप तो बता देते ना कि मुझे तुम्हारे बेटे को मारने जा रहे हैं, मुझे मैं उधर अपना रथ मोड़ देते, भगवान सारथी थे ना, भगवान पे आक्षेप कर सकते थे कि नहीं? नहीं किया आक्षेप, भगवान पे आक्षेप नहीं किए, रोए खूब रोए, लेकिन भगवान पे आक्षेप नहीं किए। आप समझिए, भगवान जानबूझकर अर्जुन को उधर लेके गए ना, आप जानते हैं उस कथा को, अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो, उसी रथ को घुमा देते, स्पीड से लेके आ जाते, जब अभिमन्यु को मारने का प्रयास कर रहे थे, 2 मिनट में अभी अर्जुन बचा लेते, क्या कठिनाई थी? नहीं बचाया। A devotee accepts the will of the Lord even if he can't understand the will of the Lord। ये आगे, अब अपना, अब तो कथा में बहुत सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी, बहुत सारी बातें और नहीं भी समझ में आने लग जाएंगी।
तो लेकिन ये ध्यान रखिए कि भक्तों की फीलिंग्स होती हैं, ऐसा नहीं होती भक्तों की फीलिंग्स नहीं होती। ठीक है। द्रौपदी के बच्चों को कृष्ण जी बचा भी सकते थे या ऐसा ना होने देते। हाँ, तो मैं ही तो बोल रहा हूं ना। अब अभिशाप था बच्चों का, हम नहीं जान रहे नहीं। अभिमन्यु को तो था कि 16 साल में मर जाएगा। अब 5 बच्चों का नटवर प्रभु बता रहे हैं, मैं जानता नहीं थी, महाभारत नहीं पढ़ी है, लेकिन होगा। अब क्या जाने क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं, क्या जान सकते हैं। ठीक है। भगवान ने पूरी महाभारत में पांडवी की सहायता की, फिर द्रौपदी के पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं करी। अगली बार भगवान आपसे पूछ के लीला करेंगे। पूछ लेंगे कि भाई, अब पता नहीं किसका प्रश्न है, कृष्णारविंद प्रभु का क्या है कि प्रिय श्रवण माता जी का है कि भाई इनसे हम रेफरेंस ले लेते हैं, फिर उसके हिसाब से लीला करेंगे। भाई इसको स्वयं अभी आप लोग थमे रहिए, भीष्मदेव कहेंगे मुह्यंती कवयो ही। अभी आप देखने वाले हो कि पांडवों की रक्षा कर लेंगे, लेकिन पांडवों के पुत्रों की रक्षा नहीं करेंगे, और अपने ही भाइयों की रक्षा नहीं करी। जो 6 भाई पहले हो गए थे उनको मरने दिया। भगवान क्या करना चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आता, बस समझ रहे हैं। लेकिन एक बात आप यहाँ पे भी आगे देखोगे कि द्रौपदी माता के दिव्य गुण प्रकाशित होंगे उससे। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि इनके दिव्य गुण प्रकाशित करने के लिए मरवा दिया बच्चों को, वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इतनी विषम परिस्थिति में भी भक्त क्या बर्ताव करता है, ये बार बार हमें देखने को मिलता है। ये तो बात हम क्लियर समझ में आती है। भक्तों को ही इतनी सिवियर, इतनी विषम परिस्थिति में डालते हैं स्वयं, और उसके बाद दिखाते हैं देखो मेरा भक्त कभी धर्म से च्युत नहीं होता। ये बड़ी स्पेशल शिक्षा आपको अभी अभी बस कुछ श्लोकों में आगे आपको मिलने वाली, बहुत सुंदर है। आगे के जो श्लोक अभी मैं मतलब तैयार करा तो उनको मैंने जिंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा। धर्मम न्यायम सकुर्णम इत्यादि इत्यादि जो 6 श्लोक बोलेंगे माता द्रौपदी, इतने दुख में भी वो बिविल्डर नहीं हुई। नहीं तो तुरंत बोलती मारो उसको, गर्दन काट दो उसकी, बोल देती कि नहीं निकलेगा मुख से कि इसके गर्दन को काट दिया जाए। वो बड़ा उत्साहित मैं उसको बोलने के लिए। अमेजिंग क्वालिटीज ऑफ मदर द्रौपदी, नहीं तो लगेगा द्रौपदी बड़ी कठोर हृदय वाली सत्या। तो अपने भक्तों को गुण भी प्रकाशित होते हैं इससे। ओके। अच्छा। अर्जुन के रथ के ऊपर तंत्र किया था जिससे वो ध्वंस होने वाला था, इसलिए भगवान ने युद्ध के अंत में पहले अर्जुन को उतरने के लिए कहा। जब अर्जुन ने पूछा कि हाँ जानते इस बात को, ठीक है। गांडीव अग्नि ने दिया। हे भगवान, अब इसी में बहस होती रहेगी, अरे भैया आपने दिया था, ठीक है खत्म हो गई बात, मत झगड़ा करो उसको, कौन दिया था गांडीव। पांडवों ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी रक्षा क्यों नहीं की, वो तो बचा सकते थे। अब आप ये बताइए कि क्या हम चीरहरण का जो प्रसंग है उसको डिस्कस कर रहे हैं? केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, फिजिक्स का प्रश्न कर रहे हो, कुछ भी प्रश्न कर देंगे। थोड़ा सा तो प्रसंग बस प्रश्न कीजिए भाई, वहां क्यों नहीं क्या किया वो सब। वहां जब